Hello and welcome to this YouTube live session with Cricket Next, and we are joining you after India have just defeated New Zealand by 44 runs, and with that, it means India will top their group, that is Group A, and are the only unbeaten team remaining in the competition. So to speak, but talking about the game itself, India did not have the best of starts. They were restricted for 249 only, one of their lowest scores in this competition so far. But then again, as we had expected, it was never going to be easy for New Zealand against the Indian spinners. They fielded four spinners, and as expected, New Zealand struggled. They were bowled out for 205 in chase of 249 in under 45.3 overs, and the star performer for Team India was, of course, Varun Chakravarti, making his Champions Trophy debut, playing his first game, in fact, and claiming 5 wickets, just running through that New Zealand top order, New Zealand entire batting lineup, in fact, with Kane Williamson leading from the front with a valiant 81, but the next best score was just 28 from Mitchell Santner down the order. Up top, well, Shreyas Iyer led from the front after India had a bit of a blip with their top three, that is Rohit Sharma, Shubman Gill, and Virat Kohli departing early. Iyer top score with 79, ably supported by Akshar Patel, who also got among the runs, but the second highest scorer for Team India was Hardik Pandya, scoring 45 of 45 deliveries. And to discuss more about this, I will be joined by two colleagues, Harshit Bish and Akash Biswas. Welcome, gentlemen. And Harshit, we were talking at the start of the match itself, pre-match, that is going to be very, very difficult with four spinners there, and that is exactly what happened. Let's kick this off with Varun Chakravarti itself. You were gunning for Varun Chakravarti to get a game, and finally got a game, and well, he's given you the kind of impact that you wanted. Team India expected with a 5 wicket haul. His only the second, if I'm not wrong, Indian to take claim a 5 wicket haul in Champions Trophy. The first, of course, came from Mohammad Shami, I think, in the first game itself. So yeah, Harshit, your take on Varun Chakravarti, that decision to bring in Varun in place of Harshit Rana really paying dividends for Team India. But I was wanting Varun Chakravarti to get a game because he was considered as India's X factor और आज उन्होंने दिखाया अपनी परफॉर्मेंस से क्यों उनको इंडिया का एक्स फैक्टर कहा जा रहा था, क्यों उनके इंक्लूजन को लेकर काफी ज्यादा बातें की जा रही थी और आज उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से दिखाया. 5 wicket haul on the debut on Champions Trophy, only the second bowler ever after Mohammad Shami to take a 5 wicket haul on Champions Trophy debut. शमी ने बांग्लादेश के अगेंस्ट डेब्यू किया था अभी तो कुछ दिन पहले और 5 विकेट लिए थे 53 रन पे. तरुण चक्रवर्ती ने 5 विकेट लिए 42 रन पे और बेटर परफॉर्मेंस. और ये और भी ज्यादा स्पेशल इसलिए बन जाता है क्योंकि हम एक टारगेट को डिफेंड कर रहे थे. 250 रन का टारगेट था मैच से पहले. मैच के प्री मैच में मिड इनिंग्स में सब ये बातें चल रही थी कि क्या 5 स्पिनर 4 स्पिनर्स खिलाना सही है, सही है, सही है. बिल्कुल सही साबित हुआ. आप देखिए न्यूजीलैंड ने जितनी अपनी बैटिंग करी सिर्फ 8 ओवर्स फास्ट बॉलर्स ने करा है, बाकी सारा काम स्पिनर्स ने किया और क्या कमाल का प्रदर्शन किया है. चाहे वो वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे वो अक्षर पटेल हो, चाहे वो कुलदीप यादव हो, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो. तो वेरी क्लिनिकल परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया. और जैसे मैं मिड इनिंग्स में भी बोल रहा था कि 250 रन बहुत है. जिस तरह का बॉलिंग अटैक हमारे पास है, जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारी रही है, जिस तरह के प्लेयर्स हमारे पास हैं, बहुत काबिल होगा, बहुत काफी होगा. और वही साबित हुआ. 250 रन को डिफेंड करना और 44 रन से मैच जीतना एक बड़ा चीज है. ठीक है, फाइनल आप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, बट ऑस्ट्रेलिया से खेलने से पहले अब प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे होगा कि यानी इंडियन टीम के अगेंस्ट खेलना है. इंडियन टीम जो कि अच्छा प्रदर्शन करती हुई आ रही है, दुबई में पिछले 3 मैचेस जीतते हुए आई है, तो इट्स अ गुड थिंग. गुड गुड गुड, वेरी गुड, वेरी हैप्पी परफॉर्मेंस. अगर मैं वरुण चक्रवर्ती की बात करूं तो वरुण चक्रवर्ती ने अपनी परफॉर्मेंस से आज ये दिखा दिया है कि भाई अब वो सेमीफाइनल मैच खेलने वाले हैं. और अगर आप फाइनल में जाएंगे तो वहां पे भी वो खेलेंगे क्योंकि उस बंदे ने अपने आप को वो परफॉर्मेंस दे दी कि आप अब उसे तो ड्रॉप नहीं कर सकते. और मैं भी डिस्कशन कर रहा था अपने कलीग से, तो मेरा यही मानना है कि जिस तरह जो प्लेइंग 11 इंडिया ने आज खिलाया है वही प्लेइंग 11 शायद इंडिया को सेमीफाइनल मैच में भी खिलाना चाहिए. क्योंकि न्यूजीलैंड जैसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप अगर इंडिया के इन 4 स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल करती हुई नजर आई तो ऑस्ट्रेलियन टीम से तो और ज्यादा मुश्किलें पैदा होंगी इस टीम के सामने. तो मुझे तो लगता है कि एक बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस है एंड आई एम वेरी प्लीज्ड. आउट ऑफ द 3 विन्स दैट इंडिया हैज secured in this tournament, for me, this was the most satisfying one. Absolutely, this was definitely the most satisfying one. जैसे हमने पहले ही बात किया था,
हालांकि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ भी जीत मिली थी, डोमिनेटिंग विंस, बट इंडिया वर नेवर रियली टेस्टेड इन दोज टू गेम्स। और यहाँ पे लगा था जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था, उसके बाद 3 विकेट जो जल्दी चटके थे, लग रहा था कि यार मे बी न्यूजीलैंड यहाँ पे एक छोट स्लाइट अपसेट कर सकता है, बट देन अगेन द इंडियन मिडिल ऑर्डर कमिंग टू द फोर। और इसी बीच तो 3 कमेंट्स भी आ रखे हैं। रोहताश कश्यप कहते हैं हैप्पी इंडिया, ऑफ कोर्स it's a happy day for Team India for sure. And there are more. Hafiz Khan from Facebook also saying good. Yeah, I'm hoping you are saying good for Team India itself. यहाँ पे यहिया काकर also putting in a comment saying मैच किसने जीता। वेल, मैच यहिया इंडिया ने जीता है by 44 runs, न्यूजीलैंड को रन दिया इन अ वे। and many congratulations. Also a few more comments coming in, हम दे लेते रहेंगे बीच बीच में comments, so viewers do definitely put in your thoughts, put in your comments, हम बीच बीच में देते रहेंगे। Sportsman, our regular viewer is back. Thank you for sticking with us. And Sportsman saying what a redemption for Varun Chakravarti after the debacle of 2021 on the same venue. You'll definitely play in the semis now, most definitely। Sportsman हर्षित अभी थोड़ी देर पहले यही बोल रहे थे कि he is going to play the semi-final and most likely he should be playing the final as well if Team India make it. But then again, let's stick to Varun Chakravarti for a while. And Akash, ऐसे हर्षित ने बताया कि the way he bowled, I mean, he completely bamboozled the New Zealand batters, and New Zealand काफी एक strong team थी ODI में, and going ahead even for Australia it is going to be very tough। But itself from Varun Chakravarti, taking a cue from what Sportsman said कि यार debacle of 2020 में इसी venue पे, I think it was a World Cup at that point in time, kind of a redemption arc हो चुका है वरुण चक्रवर्ती के लिए। He has reinvented himself। काफी stories उनके बारे में हमने सीखा कि जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को रीइन्वेंट किया है, काइंड ऑफ अ सेकंड विंड टू हिम। हालांकि कह सकते हैं कि गौतम गंभीर का हाथ वहां पे है बिकॉज ऑफ दैट के केआर कनेक्ट एंड बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस और आईपीएल, बट देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट ऑन द फील्ड ही हैज बीन एब्सोल्यूट फिनोमिनल। और यहाँ पे किसी और का हाथ नहीं है, सिर्फ वरुण चक्रवर्ती का ही यहाँ पे हाथ है। टॉप स्पिन बॉलर, टॉप क्लास बॉलर, एंड हिट प्रोबेबली द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ राइट नाउ। और अगर आप मुझसे आई मीन मेरे जवाब के बारे में पूछेंगे तो स्पोर्ट्स फैन का ये कमेंट जो आया है, अगर वो नहीं आता तो मैं यही जवाब दूंगा। मुझे इससे वरुण चक्रवर्ती इस इंडिया स्क्वाड में, चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में आए हैं, मैं बस यही सोच रहा हूँ यार 2021 में तो जो इस हम धुले थे, ठीक है, वहां से वरुण चक्रवर्ती उबर पाएंगे अगर मौका मिलेगा तो। बट इट वाज अ ग्रेट स्टार्स मेड इन हेवन टाइप, वो मतलब ऑल स्टार्स अलाइंड वाला हिसाब किताब था कि इन्होंने बस बॉलिंग शुरू की और उसके बाद सक्सेस एक मिली और फिर चलते चली गई, और लास्ट में जाके जब इन्होंने वो बंच में विकेट्स लिए, दैट वाज आई थिंक द आइसिंग ऑन द टॉप। तो यही है, आप वरुण चक्रवर्ती को मौका मिला है। और जहां तक बात रही सेमीज में खेलने की, तो अब मुझे भी लग रहा है कि शायद इनका चांस बन सकता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया।